Hi again. I'm back with the second part of this video, and the second part of this video is about fitness and the right approach towards it. See, there are zillions of videos over fitness on YouTube and other social medias, from where only 10% are correct. Rest are all bollocks, gimmicks, entertainment, circus, whatever you name it. See, fitness is not about doing this diet, doing that type of exercise, losing weight in 7 days, losing inches in 30 days, detox diet, no eating diet, हवा खाने वाला डाइट, क्या क्या चीज़ें, बहुत सारा चीज़ें. सो ऑल दिस आर बुलशिट. सी, what we had learned in school was very important, but आजकल के दिन में किसी को बोलो कि A से Z तक बोल के दिखाना मेरे को गड़बड़ लगता है, और मैंने पूछा भी है, बोला नहीं जाता उनसे A से लेके Z तक या Z तक. सो फाउंडेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. फिटनेस जो है उसको एक्चुअली लाइफस्टाइल बनाना है. फिटनेस इज नथिंग एल्स. फिटनेस इज नॉट कमिंग टू द जिम. फिटनेस इज नॉट डूइंग वर्कआउट एट होम. फिटनेस इज नॉट स्विमिंग. फिटनेस इज नॉट डांसिंग. फिटनेस इज ए लाइफस्टाइल. ये लाइफस्टाइल को कैसे इंप्रूव करना चाहते हो, देन यू गेट इन टू द ब्रांचेस ऑफ फिटनेस एंड यू चूज दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू. एंड आई विल रिपीट इट वंस अगेन that fitness comprises of 5 components. कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस मतलब अपने हार्ट का क्षमता. कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के बाद आता है मस्कुलर एंड्योरेंस, मतलब मसल्स कितने टाइम तक वर्क कर सकते हैं उसका क्षमता. मस्क्यूलोस्केलेटल स्ट्रेंथ मतलब मसल्स के अंदर कितने स्ट्रेंथ हैं. फ्लेक्सिबिलिटी, आपके जॉइंट्स के अराउंड कितना फ्लेक्सिबिलिटी आप पा सकते हो या कितना फ्लेक्सिबिलिटी है. और लास्ट में आता है आइडियल बॉडी कंपोजिशन. तो जैसा मैंने कहा, ये कंपोनेंट्स है फिटनेस का. अब आप चूज करिए कि आपको क्या करना है. बट मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि फिटनेस में अगर आपको स्ट्रांग बनना है या यू नीड टू कॉल योरसेल्फ फिट, you can only call yourself fit when you are fit in all these 5 components. If any of this component gets lacked, you cannot call yourself as fit. So you need to choose that what component you need to be very very good in. Like for example, if I take my example, I want to be very very good in strength aspect. That's why I chose powerlifting, and that's why I lift tremendous amount of weight what my body can, and I'm trying to add on more weights to it. So this is one. So you choose that, okay, this is my limit of weightlifting, this is my limit of running, this is my limit of endurance, but I want to increase my flexibility to a very good level. So okay, do yoga, but don't leave all these components. If yoga is 40%, then rest of the things should come under 60% in total, and that becomes your 100%, and you can call yourself fit. So one more thing which I want to add is that fitness, जब भी लोग आते हैं फिटनेस में and they tell that I have been doing fitness since this many years, a decade, or I have been doing fitness since last 3 months. If you haven't trained under a professional coach who has the right knowledge about fitness, then जो डेकेड में भी किया और जो 3 मंथ में भी किया, दे आर ऑन द सेम पेज. मसल्स हो सकते हैं इसके मसल्स उतने ज़्यादा नहीं हो सकते, बट द पॉइंट इज दैट कि फिटनेस जो है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, एंड दिस इज नॉट माई वे ऑफ थिंकिंग, but this is the right way and the right approach to fitness. As I told you that I will tell, the second point is about fitness lifestyle and the right approach to it. So the approach should be that fitness
or lifting weights are just like an art of meditation. Now meditation wala and yoga wala will come in and tell what the hell are you talking about. Meditation is something where you sit quietly, you need peace around you, you need peace around inside your body, and you need to go inside your body mind wise and focus on one object for quite some amount of time and be at very peace. So this is meditation. Fitness on the other hand is like torfor workout, like you are taking the dumbbells, you are making hoo-ha sound and doing it, you are taking maximum weight and your heart is throbbing and you're sweating like anything, and your sound of your body, that sound coming out from your mouth, that is because the body is taking so much amount of load, doesn't match with meditation. So why I called it as an art of meditation, I did learn from one of my sir, and it is quite logical that art of meditation and fitness or lifting weights are almost the same, not in all the aspect but in one aspect. That is, in meditation, as I told you, you focus on one object. In fitness we focus on the task in hand. So जब मुझे मेडिटेशन करना पड़ता है, एज आई डोंट नो द रियल मेडिटेशन जहाँ पे आप पीसफुली बैठते हो और अंदर जाके बॉडी के अंदर झांकने की कोशिश करते हो, एंड यू think about or focus about an object, I don't know, I haven't learned. If I learn, then I will surely tell you. But right now the strength as my religion, so this is Keza sir's quote, but I am still telling it. I have a tattoo on my hand also, the quote is written there. So strength is my religion. Why I have written it? Because it make so much of logic that I can't even tell you in a simple sentence, but still I will try and simplify. So art of meditation mein you need to focus on a simple object or a single object for quite amount of time, and you need to be at peace. In fitness, the approach toward fitness is that do the task. जो भी आपको एक अच्छा कोच बोले, हाँ उसके पहले अच्छा कोच ढूंढना बहुत ज़रूरी है, उसमें साल भर लगाओ. डोंट गो टू एनी जिम, कंपेयर द कोचेज. अच्छा ये 6,000 में देता है, 15,000 में देता है, काम करता हूँ 6,000 वाला ले लेता हूँ. 6,000 वाला आपकी कुछ और मार के लेके जाएगा. आई डोंट वॉन्ट टू यूज एनी अदर वर्ड so that this video can be seen in the family zone. So that is one thing. So while I am lifting weights, supposedly I am giving you an example, I need to meditate, right? I need to make my mind absolutely at peace, and I need to be like water, as Bruce Lee says. Okay, I need to change my form, and my mindset and the approach toward fitness at that amount of time is the task in my hand. So the task in my hand is to go under the bar, to not to talk, not to do fooling around, not to bullshit, but to take the bar with right form and technique. I sit down and get up for quite amount of repetitions, keep the bar back, come back, meditation done. So what I was doing, I was focusing on one thing. बट यहाँ पे कुछ और ही होता है. वहाँ पे स्क्वाट मार रहे हैं, बात कर रहे हैं दोस्तों के साथ, या स्क्वाट मार रहे हैं मेरे से होगा नहीं, या स्क्वाट मार रहे हैं मेरी वो जा रही है, फोन आ गया, फोन पकड़ते हैं. तो ये लोग बोलते क्यों है कि मेडिटेशन करो? साला यहीं पे मेडिटेशन का जगह था, यहाँ पे एक जगह पे फोकस नहीं हुआ, तो क्या तुम छत के ऊपर टैंकी के ऊपर बैठ के कौन सा मेडिटेशन करने वाले थे? So I don't understand, people's words are very contradicting these days. So the right approach to fitness is that, एक तो ये मैंने बोला कि treat the fitness as your lifestyle. This is not a joke, this is a lifestyle. एंड जो लोग सोचते हैं कि फिटनेस का मतलब ये है कि बारबेल उठाना, डंबल उठाना, जिम में जाना, शोर मचाना,
एब्स करना, सिक्स पैक करना, दिस इज नॉट फिटनेस. फिटनेस, these are all byproducts of fitness. Fitness is that it is holistic in nature. जैसे आप लाइफस्टाइल को अपना चेंज करते हो ना, एंड ये जो बाई प्रोडक्ट्स आपको मिलता है, ये बाई प्रोडक्ट से लोग आकर्षित होते हैं. यू गेट आई बॉल्स ऑन यू, पीपल गेट अट्रैक्टेड टू यू, एंड दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज सी, इफ यू आर समवन हु इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव एंड कोई आपको भाव भी नहीं देता, यू विल फील डिप्रेस्ड. आपने बचपन में झांक के देखो, कभी ना कभी ऐसा कुछ माहौल हुआ होगा. मेरे साथ भी हुआ है. दैट्स व्हाई आई एम इनटू फिटनेस. दैट ट्रिगर पॉइंट शुड चेंज इट. बट अभी कहाँ, मेरे को समझ में नहीं आता लोग क्या ही करते हैं. सेकेंड थिंग इज दैट व्हाइल कमिंग टू द जिम, फोकस ऑन व्हाट द नॉलेजेबल कोच सेज यू. गो होम, फाइंड आउट सम टाइम एंड सी टू इट इज लॉजिकल और नॉट. अगर लॉजिकल नहीं है, कोच को दोबारा आके पूछो. दोबारा भी लॉजिकल नहीं लगे, तीसरा बार आके पूछो. तीसरा बार भी लॉजिकल नहीं लगे, छोड़ दो. दैट कोच इज नॉट गुड इनफ टू कन्विंस यू. और कन्विंसिंग नहीं, राइट वे ऑफ कन्विंसिंग चाहिए. देखो, राइट वे ऑफ कन्विंसिंग जो होता है वो कभी कभार बोरिंग भी हो सकता है. बिकॉज सी, एजुकेशन फॉर अस वॉज एक्चुअली बोरिंग इन स्कूल. बड़ा टफ लगता था होमवर्क करना, एग्जाम देना, ये करना. एजुकेशन ठीक है, और भी बहुत सारा चीजें हैं जो कि बहुत बोरिंग है, बट करना जरूरी है, क्योंकि इसका जो फल है, द फ्रूट विच यू गेट्स आउट ऑफ इट इज अल्टीमेट. ओके, सो दिस इज द राइट अप्रोच टू फिटनेस. एंड एक और चीज बोलना चाहूंगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ब्रैग नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई हैव ए जिम which is a fitness studio, and I give personal training over here with my colleagues. The gym's name is T3 Train to Transform, and where I am sitting in, the pillar says motivation. तो ये ऐसे ही है, नहीं लिखा है. और बहुत सारा पिलर्स में बहुत कुछ लिखा है, बट आई हैव पर्सनली चोज टू सिट इन फ्रंट ऑफ इट, सो दैट थोड़ा बहुत आंखों से देख के ही आपको थोड़ा सा फील हो. सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना एक बहुत क्रूशियल पार्ट है. क्रूशियल पार्ट क्यों है? जैसे मैंने बोला कि मेरे को वायरल हुआ था, बट टेस्ट में ये पाया नहीं गया कि मेरे को कोविड हुआ था कि नहीं, बट मेरे को सिम्टम्स वैसे लगा, तो मैंने दवाइयाँ ठीक टाइम में चालू कर दी, एंड 6 days आई वॉज ऑल फाइन, एंड राइट नाउ आई एम ऑल फाइन. अभी कोई बोले तो अभी भी मैं 200 किलो डेडलिफ्ट मार दूंगा. आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी, और मार भी सकता हूं मैं. सो दैट इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज दैट जब मेरे को मैच्योरिटी लेवल हिट हुआ था ना, तभी मैं समझ गया था अल्कोहल कुछ काम का चीज नहीं है, स्मोकिंग कुछ काम का चीज नहीं है, क्लबिंग कुछ काम का चीज नहीं है. ये सब है अखंड, चलो नॉट टू यूज द लैंग्वेज अगेन, बट है वही. सो पीपल हु आर थिंकिंग दैट दे आर वेरी मच लाइक मैन, क्या बोलते हैं उसको, टशन, ये जाऊंगा यहाँ पे नाचूंगा. साले नाचना तो आता नहीं है. इफ आई टेल यू टू पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन, डांस कंपटीशन, वही डांस कंपटीशन में वही स्टेज में मतलब गिर के ना मतलब मुंह से फेफड़े आना चालू होगा. एंड दिस पीपल गो टू डांस बार सॉरी क्या, क्लब एंड पब्स, एंड बड़ा नाचते हैं और लगते हैं भाई क्या ही कर लिया, ना बॉडी है, और वो डांस करते हुए ना फैट ही हिलता है, इधर से उधर से इधर, और कुछ नहीं हिलता. ठीक है, और दिमाग तो है ही नहीं, दिमाग तो घुटने से पार हो गया. सो मेरा ये बोलने का मतलब है, थोड़ा सा मैं हार छोड़ रहा हूं, आई नो, बट भाई चेंज हो जाओ. देयर इज सम टाइम इन योर हैंड, इसको अच्छी तरह से बिताओ. एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आज आप लोड उठा रहे हो, 5 किलो उठा रहे हो, या 5 किलो से स्क्वाट कर रहे हो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो वेट डबल ट्रिपल होने का चांसेस है. मतलब आप एक चीज सोचो कि आज आपने फिटनेस का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चालू करने के बाद आप 1 साल बाद अपने आप को देखो, आप किस लेवल पे होंगे. यू विल हैव ए वेरी गुड लेवल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस. रास्ते में मैंने बहुत लोग देखा है अनकॉन्फिडेंटली जाते हैं, उनका शोल्डर में ऐसा स्लाउच रहता है, एंड दिस टेल्स दैट एनाटॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस टेल्स दैट मतलब कोई भाव ही नहीं देता, या क्या करूं, घर में भी ताने मारते हैं. एंड एक्चुअली बात करो, आपको मिल जाएगा.
जैसे मैं अपना एग्जांपल थोड़ा सा देता हूँ, अगेन आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, दिस इज वेरी कॉमन। 2 बार ऐसा हुआ है। एक बार मैं गुड़गांव से आ रहा था, तब एक गाड़ी गड्ढे में गिर गई थी। इट वॉज ए स्विफ्ट, बड़ा वाला स्विफ्ट जो आता है, स्विफ्ट डिजायर, जिसका डिक्की भी है। डिक्की तो सब गाड़ी का होता है, मतलब इट्स अ सीडैन। हाँ, तो उसका 2 पहिया नीचे गिर गया था। वहां पे 6 लोग थे, इधर से खींच रहे हैं, उधर से कर रहे हैं, इधर से वो टायर रोल कर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपने वाइफ को बोला गाड़ी रोक, मुझे आएगा। तो मेरे वाइफ वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, उसने तुरंत गाड़ी रोक लिया। मैं गया, मैंने बोला कपड़ा है क्या? कपड़ा लिया, सामने के टायर के ऊपर पकड़ा, उठाया, और एक बंदे को बोला गाड़ी को पीछे धकेल देना, बिकॉज देखो इतना भी सुपरमैन नहीं बनना चाहिए। आई एम लिफ्टिंग ए समथिंग वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टली ऐसे पुश करना डिफिकल्ट है। दोनों में से कोई एक काम एक टाइम पे एफिशिएंटली हो सकता है। तो मुझे लगा कि सबसे मेन पार्ट जो है, इंजन का पार्ट जो है, वो नीचे गिरा था, तो उसको मैं उठा सकता हूँ और एक बंदा धक्का मार दे, पीछे गाड़ी चला जाएगा। मुझे 1 मिनट लगा वो करने में। वाई? एंड पीपल वर आस्किंग मी, क्या खाते हो भाई साहब? मैंने बोला जो खाना है वही खाता हूँ, जो नहीं खाना है वो नहीं खाता हूँ। एंड ये उनको देख के आश्चर्य लगा कि भाई कैसे हो गया। बट आई एम डूइंग दिस सिंस क्लास 8, मतलब बहुत साल हो गए, 15 साल के ऊपर हो गए हैं, 20 या 15 साल, ऑलमोस्ट लाइक 15 ईयर्स 16 ईयर्स से मैंने चालू कर दिया था फिटनेस। एंड तब का रिजल्ट आज मिल रहा है मेरे को। ये जो 6 दिन में मैं वायरल से खड़ा हो गया, ये इस चीज़ का रिजल्ट है। बिकॉज द अमाउंट ऑफ लोड यू पुट ऑन योर बॉडी, ये जो लोड है, डम्बल्स बारबेल्स, ये जो लोड है, ये लोड ना पॉजिटिव बॉडी के ऊपर स्ट्रेस देता जाता है। इट टेल्स योर बॉडी की और स्ट्रेस और स्ट्रेस और स्ट्रेस, बट दिस आर ऑल पॉजिटिव स्ट्रेस विच विल इसका वो क्या होगा, इसका फल आपको ये मिलेगा कि आप अंदर से इतना स्ट्रांग हो जाओगे कि कोई एक्सटर्नल ऐसे जैसे वायरस आ गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया, कोई इम्यूनिटी का प्रॉब्लम आ गया, तो आप ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज हेल्थ स्टैंड्स एट 0, न्यूट्रल। हेल्दी मतलब फिटनेस नहीं है। हेल्थ एक छींक मारो -1 में जाओगे। अगर आप फिट हो +1 +2 +3 +4 +5 +10 और भी आगे, तो जितना ज़्यादा आप हेल्दी होंगे, माइनस में आने के लिए उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। सो आई गेस दिस वॉज हेल्पफुल एंड दिस वॉज द एंड ऑफ सेकेंड वीडियो. नाउ वी विल प्रोसीड टू द थर्ड वीडियो एंड आई विल वेट फॉर यू फॉर द थर्ड वीडियो. थैंक यू.